this happens maybe later in your university, later in your work. It's happening to people. Maybe not everyone, but to a whole lot of people. Their commitment to success is weak. They want to succeed, they will take 3 steps. Then something little interesting happens here, they will go over here, they'll go over there, they'll go over there. Yeah, what is this? Their commitment to success is weak. Either situations around them in some way, situations can impede you from doing what you're doing very easily. Many times it happens to everyone. But when this happens, people weaken their commitment for their success. Maybe physically, they'll feel a little weak. They will weaken their commitment to success. Maybe their emotions slosh around a little bit. They will weaken their commitment to success. This is very important right now. However long it takes, this virus, you must come out of this successfully. That means you must stay alive. That's an important part. And commitment to staying alive should not be slackened, no matter what happened. Somebody very dear to us passed away. All the more important we must live. People around us are all sick. All the more important we are healthy to take care of the people around us. So our commitment to success should not weaken because there is social drama going on, or physiological drama, or psychological. ये फिर वीडियो चली गई वो Success look वीडियो चला गया अब आ गए नहीं वीडियो नहीं सॉरी ऑडियो बट अब आ गए must understand that those who made any significant achievements in their lives, they did not, I don't want to take any personal examples of anybody. I'm trying to avoid obvious things that are coming to my mind. Well, I know family and friends who always have their breakfast on time. And after breakfast, of course, they must have coffee. After coffee, of course, they must light up a cigarette and sit there at night because they're trying to become peaceful. And then they will go to work, come back home exactly on time for lunch, eat lunch, rest for 1 or 2 hours, sleep, then evening have one tea and then smoke, and then again go to work. And 8 o'clock, 8:30, they're back home for dinner, and then maybe other things, drink and this and that and what. Well, that's their priority. It's fine, I'm not complaining, it should not be that way. But those who have been very successful, either in music, sport, art, business, spiritual process, doesn't matter what, those people never know when they ate, when they slept, when they got afternoon rest. I've not seen such a thing in my life. So, those who are committed to being successful with whatever they're doing, one important aspect of their life is they're not settling down wherever it's a bit comfortable. Because comfort will happen when they lower you to in the grave, very comfortable you are. Have you seen how comfortable they are? Once they're dead, if you throw them there also they're comfortable, if you lower them they're comfortable, even if you burn them. Yes or no? Comfort will come. Right
now it's about ensuring that there is profoundness of experience and there is impactfulness of activity. Because if they had given you a limitless amount of time, you could do all those things, nothing wrong. I'm not against them. But they gave you such little time with such tremendous potential of being human. That's the problem. If creation had made you like an earthworm, I'm not saying there's anything wrong with an earthworm. It is just that it's a unipolar potential. It can only do that much. An earthworm is not thinking of climbing a tree because it knows it'll be picked up by the birds. It never has such aspirations. It just wants to recycle the earth. You know, it is beneficial to so many plants, including us. But his objective is very clear to eat and to repeat. Very clear objectives. That purpose to fulfill, he strives. I don't think he sleeps in that. I don't think so, because many astronauts I've seen earthworms, they were all vigorously active. But a human being came with too many potentials. Because of that, it needs a certain level of striving for a human being to forget about the world, to consider yourself successful. If your idea of success is you're doing little better than your neighbor, I call that sickness. That is not success. You are happy that your neighbor is worse than you. Is this sickness or success? It is sickness. But in some way you feel fulfilled with what you're doing. Let's consider that as success for now. It doesn't matter whether you're better than somebody or worse than somebody. That question should not even come up in your mind. But in some way you feel you're using yourself fully and there's a certain sense of fulfillment in your activity. Well, if you're capable of just closing your eyes and simply sitting without any activity, that's fantastic. But you cannot do that. You cannot do that right now in the states that you are. You can't simply close your eyes and become still. Instead of being busy, you will become preoccupied. That doesn't mean you're improving, that means you're regressing in some way. The problem about this success is people always making judgments. I did this, I did that, maybe this didn't work, maybe that's a mistake, that's a mistake. There's no such thing in life. See, at one time you were a monk, all right? This is not me, this is that Englishman. Charles Darwin said, you were all monkeys. At one time you were a monkey, just a brief while ago. Was it a mistake that you committed, that you were a monkey? Or was it just a certain stage of evolution? Was it a mistake, or was it just a certain stage of evolution? Similarly, since you were born, because as a human being, you are born largely unformed, unlike other creatures. Other creatures, if they are just, their food is taken care of, they know what to do with their life. Because human being has come with such open sense of possibilities, you come unformed, you don't come fixed. You have to fix yourself. Different people throw different types of balls at you. From all over, your parents, your teachers, the school, the neighbors, and the society and the world throws all kinds of things at you. To gather all this muck and make something worthwhile out of yourself is your business. That's your success. It doesn't matter whether somebody thinks you're worthwhile or not. You feel you're a worthwhile life. Good enough for now. World may not recognize, it doesn't matter. But you know
you're worthwhile. हाँ जी, कहाँ पहुंची कहानी? नहीं, बहुत अच्छा फॉर मी इट वाज ए सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन, और मतलब बिल्कुल सही क्लियर हो जाता है इनके बातें सुन के कि व्हाट वी शुड बी डूइंग टू बी सक्सेसफुल. Right. So, what are your takeaways from this conversation? My takeaway from this conversation is actually basically the health part. I really believe in that, and thus to be successful, the main requirement is your health, and in fact that should be a matrix of your successful or not. According to me, if you are healthy, so you can call yourself as you are successful. Normally successful means you should be wealthy. But according to me, if you are healthy, you can consider yourself successful, and wealth can come, but without health, neither wealth will come, nor it is of any use. Actually, as you can see, COVID में क्या हुआ है, मतलब your money could not save some of you. So because that was the health issue. So that is my own takeaway is health is more important than wealth. Yeah, my father used to say, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हाँ जी, हेल्थ गया तो कुछ गया, हाँ, और अगर कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया. यस, पुराने जमाने में काफी बुजुर्ग लोग ये बोलते थे, और ये काफी सही भी है, बट लोगों ने इग्नोर किया था. बट अभी लकीली कोविड हैव टॉट अस दीज थिंग्स बैक. Yeah. कोविड में सबको ये पता लग गया कि हेल्थ इज एवरीथिंग. हेल्थ इज एवरीथिंग इन फैक्ट. कोविड ने तो ये प्रूव कर दिया. Absolutely. हाँ जी, मनीष जी, आपको क्या मिला? सर पहले रविंदर सर को पहले मौका दे दे सर, उसके बाद फिर हम आते हैं. मिश्रा जी, आप बताएं सर. नहीं, इसमें तो यही है कि गुरुजी का कहना है कि लॉट ऑफ पोटेंशियल्स लेके हम आए हुए हैं. इतनी पोटेंशियल है मनुष्य में इन ऑल एस्पेक्ट. सत्या जी ने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया. मैं ये कह रहा हूँ कि हेल्थ तो बहुत जरूरी है. नहीं तो आदमी अगर हेल्थ ठीक न रहे तो भागता है आदमी काम से. तो हेल्थ तो बहुत जरूरी है. लकीली मोस्ट ऑफ अस इन आवर टीम we are maintaining good health. Health in the sense, not as a sportsman like fit, but mentally, physically, we are just able to do. But सबसे है कि potential enormous है human being में, और उसको exploit करना है जितना हो सके. Not that and that किसी को देख के comparison करके खुश हो जाना, ये कोई बात नहीं है. तो बहुत कुछ और करना है, और लगता है कि enough is not a good word. बहुत कुछ करना है. हमें तो ये लग रहा है कि it is not enough. Still we have not seen enough. Lot more is required to be done. Absolutely. मनीष जी. हाँ जी सर. ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चाहे वो फिजिकली हेल्थ का बात हो या मेंटली हेल्थ का बात हो. समटाइम व्हाट हैपन कि किसी ने कोई असाइनमेंट या किसी मीटिंग के लिए बुलाया, अरे यार आज मौसम ना बहुत अच्छा है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं. जस्ट आई एम सेइंग कि
चलो सर्दी का मौसम है या बरसात है, तो जो हम मेंटल लेवल पर अपने आप को कंफर्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम इतने में ही सर्वाइव कर सकते हैं या चलो हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। जितना आपको मेंटल लेवल पर भी उतना ही अपने आप को कंफर्ट जोन में कभी नहीं लाना है, चाहे वो हेल्थ पर हो या मेंटल स्टेटस पर हो। आपको हमेशा काम करते रहना है और गोइंग ऑन कंसर्न पर काम करना है। ऑसम। और कुछ? नहीं, मेरे तरफ से तो कंप्लीट है। Alright. तो उन्होंने ना जो आज वीडियो हमने देखा, उन्होंने शुरुआत की थी सक्सेस को उन्होंने कंफर्ट के साथ में रिलेट किया था। तो जैसे ही हम कंफर्ट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो उतना हम सक्सेस से दूर होना शुरू हो जाते हैं, विच आई थिंक वाज वेरी रेलिवेंट। उन्होंने कहा कि जी कंफर्टेबल तो आप तब होते हो जब आप निगम बोध घाट जाते हो, और अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप किसी भी परिस्थिति में कंफर्टेबल नहीं होगे। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पिछले 3 हफ्तों से ऐसा हो रहा है कि जी फ्राइडे मैं भूल जा रहा हूँ। आज भी 5 मिनट पहले उठा और उठते ही ध्यान आया और मैं मेंटली रिकॉल कर रहा हूँ कि ये दिन कौन सा है, एंड आई वाज होपिंग दैट टुडे इज थर्सडे, बट वो थर्सडे नहीं था। फिर मुझे लगा कि जी चलो ठीक है यार, ड्रॉप कर देते हैं, बट नहीं, 7:30 बजे मैंने ऑन कर दिया। फिर मैंने होप किया कि जी शायद कोई ना आए, बट 10 मिनट के बाद मिश्रा जी आए, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, आज इनर सर्कल होगा। तो जब मिश्रा जी आए तो इनको मैंने कहा कि जी 2 मिनट के लिए मैं म्यूट पे रख रहा हूँ, मैं जरा ब्रश वगैरह कर लूँ उस टाइम में। तो ये तो मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ जी, ठीक है ना। तो हालांकि आपको किसी को नहीं पता चलेगा कि जी मैंने ब्रश किया नहीं किया, बट अपने आप से तो आदमी चोरी ना करे तो बेहतर है। आई थिंक हेल्थ इज एन इम्पैक्ट ऑफ, अगर मैं अपने आप से चोरी करता हूँ तभी मेरी हेल्थ नीचे जाती है, वरना चांस ही कोई नहीं कि वो नीचे चली जाए, राइट। और जिस स्टेज पर जाकर आदमी खुद से चोरी करना शुरू कर दे, तो वो वाली स्टेज 100% सक्सेस आपकी जो है भागेगी वहां से, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। मैं किसी और से तो अपने आप को छुपा सकता हूं, लेकिन अपने आप से नहीं। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेरे अनुसार हेल्थ के 4 मायने हैं, एंड आई वुड लाइक यू टू प्लीज शेयर व्हाट एल्स। सो 4 एस्पेक्ट्स जो हेल्थ की हैं। पहली है फिजिकल हेल्थ, जो हमें बॉडी की दिखाई देती है। दूसरी है मेंटल हेल्थ, अगर हमारा मेंटल स्टेटस जो है वो फर्टाइल है तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे और कुछ ना कुछ और सोचते रहेंगे, और वो कुछ और जो सोचेंगे उसी में नया इजाद होगा, उसी में नई इन्वेंशन होगी, उसी में नए थॉट्स आएंगे। सो दैट्स द इमोशनल हेल्थ, सॉरी दैट इज द मेंटल हेल्थ। तीसरा आ गया इमोशनल हेल्थ। इफ आई एम इमोशनली स्टेबल, I will have a set of good people around me and I will continue to have forward going conversations, right? And I think the next level, next higher level is the spiritual health. And spiritual, I don't mean religion. Spiritual, I mean as a person, how evolved are you? How evolved am I? Am I limited to, जिस तरह उन्होंने बात की थी केंचुए की, ठीक है, earthworm. So he spoke about earthworm. The entire life of earthworm, he said, revolves around 3 pieces.
eat, reproduce, excrete and die. है ना, खाओ, खुजलाओ और फिर खुजलाओ. Right? So that spiritual element is probably missing in that single dimensional life, which I think is a privilege which we have as human beings. He was talking about a human being being born, I would say incomplete, but having a lot to evolve. So वो वाली जो scenario है, that I think is the spiritual element. So I would like you to, Mithlesh ji, welcome, and I would like you to just share on this. हाँ जी. Good morning, sir. Good morning जी. नहीं मिथिलेश जी. तो मिथिलेश जी, आज का टॉपिक जो रहा, वो अभी हमने सदगुरु जी का एक वीडियो देखा जहां पर वो सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स के बारे में बात की उन्होंने कि जी सक्सेस के मायने क्या हैं और किन परिस्थितियों में सक्सेस नहीं आती. तब अभी उसी के ऊपर चर्चा चल रही है. सॉरी डिले ज्वाइन करने के लिए. कोई बात नहीं सर, ज्वाइन किए तो हैं. हाँ. ये भी सक्सेस का हिस्सा है. यस, देर आए दुरुस्त आए. हाँ जी. So I spoke about the 4 elements of well-being या 4 elements of health. तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सत्या जी, आप कुछ कहेंगे? यस, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बता दिया. और जैसे ये सदगुरु की भी टॉक में था कि एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और जो इन्फर करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू your network and the people to whom you are connected, or the people who are related to you or whom you like. जैसे सदगुरु ने बोला तभी, अपना तो ये है कि कोई और हमारा पड़ोसी या हमारे नेटवर्क का बंदा अगर सक्सेसफुल है तो आई फील सैड. वो जो 3 इडियट में भी ये लेसन था. तो जो मिश्रा जी जो इंट दे रहे थे भी, अगर दूसरे को खुश देख के हम खुश हो जाते हैं तो दैट इज नॉट एनफ. बट एक्चुअली वो भी चाहिए. और सदगुरु जी उसका उल्टा बता रहे थे कि कुछ लोग दूसरे को खुश देख के दुखी हो जाते हैं, एंड ही वाज टेलिंग दैट एज ए सिकनेस. और वो एक बहुत बड़ी बीमारी है एक्चुअली. सही बात है. और दैट इज where the social health comes in play here. The how happy you are in your network by seeing the welfare of your network, the welfare of your relatives, welfare of your friends, family and your network actually. तो अभी तो जो मनीष जी ने भी हेल्थ के बारे में, फाइनेंशियल हेल्थ की बात भी की थी, तो मैं उससे पहले आई विल लाइक टू ऐड द सोशल हेल्थ आल्सो एक्चुअली. एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कीप टेलिंग योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप 5 बातों. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हाँ जी, मनीष जी, मिश्रा जी, मिथिलेश जी. हमें लगता है कि सबसे ज्यादा टेक अवे ऑफ टुडेज टॉक इज दिस, सबसे ज्यादा यूजफुल कि वी मस्ट थिंक अबाउट आवर नेटवर्क. नेटवर्क के लोग ही अगर कंफर्टेबल हैं तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
and we are not able, we must see whatever is possible, we must see and continue. I think that's the biggest accomplishment also for a person. हमें लग रहा है. बिल्कुल. मिथिलेश जी, मनीष जी. तो मिथिलेश जी, मैं अभी जो लास्ट मैंने अभी कन्वर्सेशन की, मैंने वो ये कहा कि हेल्थ जो है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं. पहला एलिमेंट है फिजिकल, जो बॉडी का हो गया. दूसरा हो गया मेंटल, हमारे किस प्रकार के विचार हैं. तीसरा हो गया हमारा इमोशंस, हम इमोशनली कैसे कनेक्टेड हैं. चौथा हो गया स्पिरिचुअल. तो अभी सत्या जी ने 5वां एलिमेंट कहा सोशल, कि जी हमारा नेटवर्क कितना हेल्दी है, विच आई थिंक इज द सेकंड डिग्री. इसको हम और आगे बढ़ाते जाएंगे तो आई थिंक 7 डिग्री तक तो हम पहुंच जाएंगे. 7 तक पहुंचने की जरूरत नहीं, 6 डिग्रीज आर एनफ एक्चुअली. क्योंकि अगर आप 6 डिग्री पहुंच गए ना तो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाओगे और सारी प्रॉब्लम्स तक पहुंच जाओगे. एब्सोल्युटली. एक थ्योरी है जो कहती है कि जी you can know everybody on this planet up to 6 degrees. Yes, exactly. तो इसको एक और एंगल से मैं जोड़ता हूँ ना. टिपिकली डिजिटल मार्केटिंग में बेडरूम को करवा दो पहले. वो कहते हैं कि जी मीडिया जो है वो 3 तरीके का होता है. हाँ जी. एक होता है ओन्ड, दूसरा अर्न्ड, और तीसरा होता है परचेज या पेड. तो ओन्ड वो है जो मेरा अपना है. तो सिमिलरली हेल्थ जो मेरी अपनी है वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल में आ जाएगी. जो अर्न्ड है वो सोशल से आएगी, कि जी मेरे उसमें मेरे सर्कल में मेरे रिलेशंस कितने स्ट्रांग है. फिर तीसरा आ गया पेड, वो है कि जी मैं कितना नेटवर्क खरीद सकता हूं. दैट ऑल्सो एड्स टू माई हेल्थ. मिथिलेश जी क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मुझे जहां तक बातचीत से समझ में आया ना कि अगर जिस स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं, जहां पर हम सारे लोग हैं, यहाँ पर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहे और सोशल स्ट्रांग रहे, फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रांग रहे, तो यही हमारा सक्सेस है. इसके अलावा कुछ करके मिलना भी कुछ नहीं है. ये तीनों चारों चीज जो बोल रहे हैं मैं, वही काफी है और सक्सेस के लिए. प्लस जो सोशल बोला ना सत्या जी ने, आज की डेट पे वो इम्पोर्टेंट है कि हम बाकियों के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, खुद का अपना सब कर लिए, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस अपने लिए खाली हो सकता है, कोई याद नहीं रखेगा बाद में. के कारण अगर आपका सोशल नेटवर्क भी अच्छा होता है, वो भी सक्सेस है. अभी बहुत ज्यादा मैंने सदगुरु जी को सुना नहीं ये वाला वीडियो. सक्सेस है कि आपके आसपास सारे लोग खुश रहे हैं, एब्सोल्युटली सक्सेसफुल लाइफ. या और बताएं. एक्चुअली अतुल जी, मैं एक और ऐड करता हूँ. आजकल मेरा ये इस फोर्टनाइट का बुक है द एलिमेंट ऑफ नवल रविकांत. पता नहीं आपने नवल रविकांत का नाम सुना है या नहीं. बुक का टाइटल है ए गाइड टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस. और जो अपन अभी बात कर रहे हैं, जिसको अपन सक्सेस बोल रहे हैं, उसमें ये नवल रविकांत जी, जो इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट हैप्पी billionaire on the earth. He's an Indian settled in Silicon Valley. The most happy billionaire on the earth. मतलब जो रिच वालों में सबसे ये खुश है.
और सक्सेस का रिलेशन सदगुरु साहब ने बोला हैप्पीनेस से, और आजकल हर जगह। तो इस बुक को फॉरवर्ड किया है बाय माय अनदर गुरु टिम फेरिस, जिन्होंने हमें 4 आवर वर्क वीक। तो टिम फेरिस ने सिर्फ एक बुक का ही फॉरवर्ड लिखा, वो इस बुक का लिखा है, और सारे वो ही हिमसेल्फ इज ए अकम्प्लिश्ड बेस्ट सेलर। बट वो कहते मैंने भी जो सीखा है ये नवल रविकांत से ही सीखा है, जो मैंने अचीव किया। तो ये स्टैंडिंग है इनकी सिलिकॉन वैली में। तो ये बंदा ये कहता है कि, और इन्वेस्टमेंट की भी बात करता है, बिकॉज यहाँ वेल्थ क्रिएशन की बात करता है, हैप्पीनेस की भी। तो ही हिमसेल्फ हैज रिटन एंड इज ए एग्जांपल कि आपकी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट वेल्थ इज, फर्स्ट इज इन योर हेल्थ। देयर इज नो रिस्क, मतलब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है इनमें रिस्क है ही नहीं और फेल भी नहीं हो सकते आप, एंड यू आर श्योर टू सक्सीड। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग इन द हेल्थ, and second investment, and that is what I'm doing these days, in actually developing some skills in you, developing some credentials, some degrees, what जिनको पहले डिग्री बोलते थे, मास्टर्स, पीएचडीज, और अब उसी चीज को स्किल बोला जाता है एक्चुअली। वो कहते हैं ये 2 इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं, दीज आर द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, and these are the most, you can say, most important, and they will give you maximum ROI without risk. Otherwise जो conventional ROI is related to risk, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे तो ROI हो ही नहीं सकता कन्वेंशनल में। बट ये कहते हैं कि इन 2 में कोई रिस्क ही नहीं है, एंड ROI इज मैक्सिमम। तो हेल्थ का इन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया। बुक मैंने आधी पढ़ी है, ये मेरी पूरी हो जाएगी तो आई लाइक टू आल्सो टेक ए सेशन ऑन आइदर ऑन ट्यूसडे और सम वे, बिकॉज ये एक बुक है जो, मतलब वैसे बहुत बुक्स अच्छी लगती हैं, बट अभी ये बुक मुझे अपने लाइफ की टॉप बुक लगी है, टॉप बुक, द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, जो बोलते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज इन हेल्थ, सेकंड बेस्ट जो मुझे भी पता थी, टू एजुकेट योरसेल्फ और टू डेवलप स्किल, बिकॉज ये 2 चीजें हैं जो पहले जमाने में लोग बोलते थे कि आपसे ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना खराब कर सकता है आपका हेल्थ। दैट इज व्हाट इज द सेफेस्ट थिंग, योर हेल्थ इज सेफेस्ट। मतलब हेल्थ को कोई और कुछ लेके ही नहीं जा सकता। और सेम थिंग इज अबाउट योर एजुकेशन एंड योर स्किल्स। और इस बंदे ने तो बात की है कि आप एक स्किल जो इकिगाई में भी आप लोगों ने पढ़ाया है, वो भी इसमें बोलता है। और इतना बढ़िया है कि इट विल, जैसे जो टिम फेरिस मूवमेंट था मेरा, जो आज से 7 साल पहले था, व्हेन आई लेफ्ट द कॉर्पोरेट जॉब बाय रीडिंग द टिम फेरिस बुक, जिसमें ताकि फायर योर बॉस, बिकम इंडिपेंडेंट, बिकम फ्री, डोंट वर्क फॉर एनीबॉडी। Now this book is coming to my second movement kind of thing, which will change everything I am doing today. तो वो काफी जबरदस्त है। तो बट उसका इससे भी, सदगुरु वाले से भी रिलेशन ये है कि to achieve happiness you have to achieve success, to achieve success you have to achieve health, and these 5 health और 6 health, उन सबको हेल्थ से रिलेट किया जाएगा और करना चाहिए, चाहे मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, और इवन फाइनेंशियल हेल्थ आल्सो, जो मनीष जी बताते हैं। ये सारी चीजें हेल्थ है, बट इनका 2 से रिलेशन यही आता है, एक तो फिजिकल हेल्थ से, और सेकंड है जो मेंटल हेल्थ, एक्चुअली इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन या स्किलिंग से ही होता है, ये लिख पढ़ के ही होता है। जो मेंटल हेल्थ कैन बी क्रिएटेड और इम्प्रूव्ड, मतलब कि बाय रीडिंग, बाय स्टडिंग, बाय लर्निंग, बेसिकली लर्निंग का मेन है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हो रही हैं। Awesome. थैंक यू सर।
अभी आपने एक और एंगल दे दिया, हाँ जी, विच इज द फाइनेंशियल एंगल। बहुत Yes. बढ़िया। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फाइनेंशियल से जो है हमारा सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री खुल जाता है। यस एग्जैक्टली। तो ऐसे ले दे के आई थिंक यू कैन ट्रीट देम जैसे 360 डिग्री, जो 6 डिग्री में 360 डिग्री हो सकता है। तो ये जो 6 अब हो गए हैं अपने, आई थिंक इन्हीं को 360 डिग्री में करके, इन्हीं को जैसे फर्स्ट डिग्री लेट अस कीप हेल्थ, सेकंड डिग्री कैन बी योर मेंटल, नहीं फिजिकल हेल्थ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री कैन बी मेंटल, थर्ड डिग्री कैन बी जो आपने बताया इमोशनल, फोर्थ डिग्री कैन बी स्पिरिचुअल, फिफ्थ डिग्री कैन बी सोशल एंड सिक्स डिग्री कैन बी फाइनेंशियल। फाइनेंशियल विल कम लास्ट। और ये 6 से ही यू कैन अचीव द 360 डिग्री ऑफ सक्सेस which leads to happiness. According to me, happiness means you have 360 degree of success. That means you are success everywhere. Whatever you do, whatever you think, you feel you are success. तो उसको 360 डिग्री सक्सेस बोलेंगे, which is happiness. और वो 360 डिग्री ये 6 डिग्री से ही हो जाएगा। तो अभी आपकी कन्वर्सेशन में ना मैंने एक 7th डिग्री भी ऐड कर दिया। अच्छा अच्छा, यू वांट टू टेक इट टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब आप हमें धरती के ऊपर ले जाना चाह रहे हो, मार्स पे ले जाना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो 7th है दैट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो मेन ऑब्जेक्टिव एज आई टोल्ड, बट दैट कैन बी मेन ऑब्जेक्टिव। So जैसे आपने अभी कहा ना कि being happy in somebody else's success, हाँ यस, वो भी एक बीमारी है। If you are not able to be happy in somebody else's success, यस you always have somebody who's more successful than you, यस यस, and you will always have a reason to not be happy. यस। So I think happiness itself is also a kind of a health, which may not Yes. be visible. Exactly. And that is something which allows you to be at ease. Yes. So actually ये जो है ना ये एकदम 360 डिग्रीज हो गया। हाँ बिल्कुल साहब, ये 360 सबका। सदगुरु जी Yes. ने शुरुआत की थी कि जी अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। Yes. और मैं कह रहा हूँ कि जी अगर आप हैप्पी हो गए तो आप कंफर्टेबल हो गए। Yes. और अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। Yes, exactly. ये थोड़ा सा वही है कि उनका है कि दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच, जो अपन ने OKR में भी स्ट्रेच गोल की बात की थी। तो सदगुरु साहब वो कहते हैं भाई नेवर रेस्ट एंड जस्ट मतलब डू समथिंग व्हाट सीम टू बी इम्पॉसिबल। वो स्ट्रेच वाली बात करते हैं, वो हमेशा ही करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आदमी धर्म संकट पड़ जाता है, नेवर कुछ गेट करना चाहता है सेटिस्फाइड, आदमी, और नेवर गेट हम लोग सेटिस्फाइड। आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं पारिवारिक रूप से कि पारिवारिक रूप से अब सबकी माने रवि। हाँ जी, तो बिल्कुल सही। आई थिंक ये व्हाट आई रिक्वेस्ट अतुल जी, आप इन सबको डॉक्यूमेंट करके कोई एक कोर्स तैयार करो अपने नेटवर्क के लिए अपने, और उसी पे फिर वी विल इनवाइट रिलेटेड टू दैट मींस हाउ टू बी सक्सेस 360 डिग्री, या उसका कुछ अच्छा सा नाम ढूंढेंगे जिसमें यही बात जो हुई है, मतलब हाउ टू अचीव हैप्पीनेस। बिकॉज ये हैप्पीनेस जो है ये निर्वाणा टाइप है बेसिकली, जो सदगुरु साहब तो खुद ही कह रहे थे कि भाई ये तो दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड निर्वाण। इफ यू फील यू आर सक्सेसफुल एंड यू फील यू आर सेटिस्फाइड, देन you have no role to play further. So it is better आपको निर्वाण मिल जाए, मतलब दैट इज व्हाट कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अष्ट धातु की 8वीं धातु भी मिल गई है। यस यस, क्योंकि इसको लिंक किया जाता है गौतम बुद्धा से, जो हुआ जो प्रिंस हुआ, उससे ये बताया जाता है कि वेल्थ इज नथिंग एंड वेल्थ कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। जो गौतम बुद्धा जो प्रिंस थे, देखो ही हैड टू लीव एवरीथिंग,
जस्ट टू अचीव हैप्पीनेस। एक्चुअली उनका गोल था हैप्पीनेस, और वो कहते ये पैसे का क्या है, ये देखो दुनिया भूखी मर रही है, ये बीमार चल रहा है, ये कोई भीख मांग रहा है, जो उनको पता ही नहीं था। जब उन्हें पता लगा कि ये इस पैसे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वही उसी चीज पे ये सारी चीजें जो सदगुरु ने बताई, जो हमने डिस्कस की, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग देयर। एंड इसके ऊपर एक कोई कोर्स करना बनता है, एक कोर्स डेवलप करना, और वो मतलब उसको आगे इसका नाम हम प्रोपोगेट रखेंगे करना। द हैप्पीनेस कोर्स, और Yes, नहीं, द सक्सेस कोर्स। हैप्पीनेस तो बहुत पढ़ाते हैं। हैप्पीनेस बहुत पढ़ाते हैं, सक्सेस भी बहुत पढ़ाते हैं। मतलब यू हैव टू कॉल इट अल्टीमेट ऑफ सक्सेस और अल्टीमेट ऑफ हैप्पीनेस, समथिंग लाइक दैट। मतलब दैट इज द फाइनल थिंग। उसमें ये कर सकते हो, हैप्पीनेस डैश अल्टीमेट ऑफ सक्सेस। अचीविंग निर्वाणा। हाँ बिल्कुल, ये निर्वाणा ही है और वही है, और एग्जैक्ट वही हो जाएगा। तो आप अभी गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, तो अगर हाँ हम जी। देखें तो उनकी सक्सेस की शुरुआत इससे हुई थी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। He could have continued to be a prince and maybe become the King. monarch or whatsoever, and lived a very comfortable life. But वो दिमाग में एक खुराफत आई कि what is sorrow? Why does the world have sorrow? Then he came out of his comfort zone and went in search of it. Yes. So I'm very sure that he would have been physically fit. Since he thought about it, so he was mentally fit. Since he was able to relate to others, he was able to relate to somebody else's sorrow. He was emotionally healthy. Yes. And he is, it is believed that he achieved nirvana. Exactly. So he was spiritually healthy. उनका सोशल नेटवर्क इतना तगड़ा है कि जी आज भी बढ़ता जा रहा है, even if he is not there. Right? There are so many people who relate themselves to him. They say कि मैं बुद्ध हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि. That is a social network. And in this process, he went beyond financial. तो financial एक element था जो निरर्थक हो गया. Yeah. Which did not have any value, any currency after this. And happiness and nirvana is something what he achieved. I think awesome, the complete journey, complete cycle. बिल्कुल साहब, आई थिंक ये आपको रोल मॉडल मिल गया है जो गौतम बुद्ध है। इस पे थोड़ी रिसर्च करके और इसकी एक्शन जो इनकी जो भी है स्टोरीज को रिलेट करके, वी कैन डू ए कोर्स ऑन दीज अल्टीमेट ऑफ सक्सेस, अचीविंग हैप्पीनेस। मतलब क्योंकि वर्ड हैप्पीनेस फिर भी रहेगा, बिकॉज ये सारा उसी से है, और आजकल काफी बातें हो रही हैं, बट हाउ टू रीच देयर, वहां पे ये सारी चीजें हैं। और हेल्थ से शुरू कनेक्टेड करेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट इज ऑलवेज हेल्थ एंड दैट हैज प्रूवन दिस, तो फिर ये काफी एक अच्छी चीज एक बन जाएगी अपने लिए एक्चुअली। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं अभी एक और चीज मेरे दिमाग में आई। आप एक्सिस बैंक से बोल रही हैं? इट इज अबाउट कम्युनिकेशन। हाँ जी, हाँ जी। मैं अपने मैं आपके अकाउंटेंट का नंबर दे दूं अपने आप कि अगर हम देखें तो there are some people who have had really very impactful conversations. हमने गौतम बुद्ध की बात की, गौतम बुद्ध को गए कितना समय हो गया? हाँ बहुत, आई थिंक 5000 साल तो हो गए होंगे। राइट, लेकिन उनकी वाणी जो है वो आज भी धरातल के ऊपर घूम रही है। यस। राइट, आप गुरु नानक देखिए,
गुरु नानक ने किस समय किस परिस्थिति में किससे क्या बात की हमें नहीं पता, लेकिन वो वाली बात आज भी पूरी दुनिया में घूम रही है। कोई ना कोई हर क्षण उसका उच्चारण कर रहा है, उसको याद कर रहा है, उसको इंटरनलाइज कर रहा है। Yes. Right? So I think this is more recent would be Swami Vivekananda. अभी कल परसों में स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ सुन रहा था कि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, himself he was not somebody who would go out and speak, but he chose a vehicle who would make Ramakrishna immortal. है ना? तो जो उसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की, they are one of the largest impact makers in the world today. So this is the power of having a conversation which is larger than yourself. क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। आई थिंक वो तो है ही कि ये कम्युनिकेशन, तो ये भी, ये अकॉर्डिंग टू मी दिस विल फॉल इन योर, जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, मतलब इट इज ए स्किल, और ये भी बहुत जरूरी स्किल है। एंड दिस इज हाउ यू अचीव थ्रू मीन्स एजुकेटिंग योरसेल्फ और प्रैक्टिसिंग और getting mentorship or some kind of training actually, और वो तो बहुत जरूरी है। और कुछ लोग लिख के, जैसे ये बुक्स के ये जो बेस्ट सेलर ऑथर्स हैं, ये लिख के ही कम्युनिकेशन करते थे, बट आजकल ये वर्बल कम्युनिकेशन हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। So that also I think is a measure of success or a demonstration of success, whether measure or not, it's fine. Yes. So if you look at these people, Buddha, Nanak, Vivekananda, all of them are super successful people. Yes. They're not mediocre. Haji, so we're coming towards the end of this session. तो आज तो एक काम करते हैं, what are the 3 key things that you are taking back into your life? I think that would be a good question. What do you say? So according to me, as I told, it is, I will give 100% preference and priority to health actually. That is the most important takeaway for me from today's. Awesome. और बाकी 2? तो अच्छा, तीनों बताने। अच्छा, बाकी 2 है मेरा, अभी तो मेरी कॉल में हो ही गए हूँ। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज स्किल टू अचीव सम यूनिक स्किल्स, एंड थर्ड इज टू गिव बैक टू सोसाइटी, टू योर नेटवर्क। तो ये 3 चीजें कि अपने नेबरहुड, अपने फ्रेंड्स, फेलोज को व्हाट यू कैन गिव। They cannot take away your health, they cannot take away your skills, so what you can give after you have achieved these 2 things. That's very profound. Very, very. मिथिलेश जी, मैंने ये 6 चीज लिस्ट की है, और सिर्फ मुझे लगता है कि अब करना ये है कि हर चीज में थोड़ा 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 बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप सक्सेस के दिशा में चले जाएंगे। तो ये बहुत शानदार रहा कि हमें डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जो बोले ना कि हम कर रहे हैं और पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। तो बढ़िया आप लोगों ने डिस्कस करके बताया कि एटलीस्ट ये 6 चीजें आप रख लो और 6 में थोड़ा सा बेहतर करो कल से आज,
या अगला हर समय उसमें ऐड ऑन करते रहे तो सक्सेस अपने आप, सक्सेस और हैप्पीनेस अपने आप बेहतर हो जाएगा, हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। बजाय इसके कि एक ही दिन में फाइनेंशियल, मनीष जी पढ़ाते ही हैं कि एक दिन में तो होना है नहीं सक्सेस फाइनेंशियली। तो ऐसे ही बाकी चीजें भी जो है ना, हर चीज में अगर 1-1% भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए और एट द एंड हम उस जगह पहुंच गए जहाँ की लगे अब थोड़ा बेहतर है ना, तो इसका मतलब कि हम मेंटली और बाकी फिजिकली, सोशली सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो मैंने डॉक्यूमेंट करा है, अभी डॉक्यूमेंट करके जो है ना इसको लिख के रखेंगे भाई, ये 6 चीज है जिसपे एक पे काम नहीं करना है। बहुत बढ़िया फिजिकली हेल्थ, बहुत बढ़िया फिजिकल हेल्थ है, बाकी सब बेकार है, तब भी बेकार है। लाइक कि हम अगर फाइनेंशियली बहुत पैसे हैं और बाकी चीजों में जीरो हैं, तब भी जिंदगी एंजॉय तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। तो एक पैमाना सा मिल गया कि ठीक है ये पैमाना है, अब इस पैमाने पे खुद को अपने आप जज करेंगे हम कहाँ हैं, और अगर जिसमें हमारा कम आ रहा है मार्क्स, उसके मार्क्स को बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। और मनीष जी? सर सब लोगों ने काफी कुछ कर दिया है सर, बस आई हैव टू इम्प्लीमेंट यस, वेल्थ, Great. हेल्थ एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। बातें तो बहुत हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। ऑसम। चलिए ठीक है, आज का ये सेशन इतना बेहतरीन बनाने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई थिंक ये जो अचीविंग निर्वाणा ये जल्दी आएगा किसी न किसी रूप में। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ये आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको और मनीष जी भी हेल्प करेंगे एग्जीक्यूशन में बिकॉज आपके फर्स्ट वीडियो में तो एग्जीक्यूशन पे ही जोर था, OKR वाली में। तो हाँ, that- इस पॉइंट पे जो शाम की जो होती है ना, उस पे 1 घंटे का दे सकते हैं। बहुत शानदार टॉपिक है और एटलीस्ट सबसे रिलेटेड है। बिल्कुल जी। यस जो सुन भी लेंगे उनके जिंदगी में फर्क तो पड़ जाएगा। यस, कुछ बोले ना बोले, वो अपना कैलकुलेशन तो शुरू कर देगा, यार मैं इसमें अच्छा हूँ, बाकी मेरा कहाँ है। यही रियलाइजेशन ही काफी हो जाएगा किसी के लिए वैल्यू ऐड करने के लिए। ना वो हमें कुछ बोले, लेकिन चुपचाप सुन के भी उसको लगेगा यहाँ तो हम लैग कर रहे हैं। बहुत सही। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सप्ताह दीपावली के बाद। आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you, and same to all of you and your families. Thank you, sir. Thank you. All right, thank you. Bye. थैंक यू। उसके पहले भी मिलेंगे। बिल्कुल।